Hello students, welcome in today's lecture. Okay, in the previous lecture we have learned or we are learning second poem, first poem of the second unit, Song of the Open Road, and in the last lecture we have completed page number 94. Okay, and today we will learn on page number 95. So let's see on page number 95. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. Okay. The author says that he does not want any constellation. Okay. Constellations का meaning बाजू में दिया है. Constellations means what? In this context, fate or destiny, and second meaning influential groups of people, means famous people or lucky people or stars. So the narrator or the author does not want any powerful people or any influential people near to him to get success in his life. He is capable to get success. The author or the narrator is capable to work hard and get success in his life. For his success, he does not need or there is no need of powerful people, lucky stars, etc. etc. I know they are very well where they are. The author knows very well that the lucky people and stars and other things are there on their place very well where they are. They are very well on their place, but the writer doesn't need of them. Next. I know they suffice for those who belong to them. Still here I carry my old delicious burdens. So the writer says that there are different kinds of persons who came in his life, okay, but the writer doesn't need of those lucky people or of those famous, powerful, influential people. But when the poet faces or when poet experiences different kinds of people in his life, he carry out the burdens of those people. Burdens means here not we can say burden म्हणजे बोझा वगैरे असं ते नाही. Burden means the memories of the people, sweet memories of the people. The narrator always carries sweet memories of the people of his relationships. He meet many people who are relatives of the narrator. Okay, but the narrator here still carries the relationships or the burdens of relationship. But those are the sweet burdens. Those are the sweet memories for the narrator, for the author. So he says, still here I carry, means still here means in his life, he carries the delicious memories. Old delicious burdens means old memories, delicious memories, sweet memories of relationships or relatives. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. So the narrator, author carries men and women. Men and women means relationship. So he carries relationship with him. I carry them with me wherever I go. Wherever he goes, the memories of the relationships he carries with him. He does not forget any of his relatives, any of his relationship. He always carries memories with him of this relationship. Next. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. I swear, narrator swears that it is impossible for him to forget those memories, to forget those relationships. In every stage of life, in every phase of life, he has different relationships, and it is impossible for the narrator, for the author, to forget, to get rid of them means to come out of relationships, means to forget relationship. It is impossible for him. I am filled with them. The writer, the narrator
or the poet is filled with the memories of this relationship, and these memories he carry with him always. I am filled with them and I will feel in them return. So he is capable to manage the journey of life with the sweet memories of the relationship. He always carries his memories of relationship with him. It is impossible for the poet, for the narrator to forget the memories of the relationship. So here we have completed the poem. The poet is Walt Whitman, and you know that the poet experiences journey, and the poet says that one has to make this life journey alone, and one should be capable to do this journey with the relationship of people, and one should not forget sweet memories, or one should not forget the relationships that he has faces in his life. Okay, so page number 95, brainstorming activity is there. First activity में क्या दिया है? Pick out the lines showing that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey. पोएट जो है वो उसके लाइफ की एवरी मोमेंट की जर्नी को एंजॉय करता है. ये दिखाने वाली लाइंस कौन सी है? जैसे कि हमने पहली लाइन देखी, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड. दिस लाइन शोज दैट द पोएट एंजॉयज हिज जर्नी. And the second one is healthy, free, the world before me. This line also shows that the poet enjoys his journey. Okay? Second activity में क्या दिया है? देखो, by old delicious burden. What the poet means by old delicious burden? इसका मीनिंग क्या है? कवि ने उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोएट उसका मीनिंग क्या दिया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको. पहला मीनिंग है द लगेज, दूसरा है द फूड ही कैरीज, तीसरा है द स्ट्रेस ही बेयर्स ड्यूरिंग द ट्रेवल्स, और फोर्थ नंबर है स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. तो ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, ये जो ओल्ड डिलीशियस बर्डन है, ये ओल्ड डिलीशियस बर्डन का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है? स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. ओके, स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट मीन्स ओल्ड डिलीशियस बर्डन. जो पुराने समय की जो बहुत मीठी मीठी मेमोरीज होती है लोगों की हो, जिसे वो मिला है, उनकी मेमोरी को, उन रिलेशनशिप्स को, उन लोगों की यादों को पोएट को कैरी करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन यादों को वो भूल नहीं पाता. ओके, समझ में आ गया? तो पेज नंबर 95 यहां खत्म हो गया. पेज नंबर 96 पे एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी क्या है? फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज ऑफ द पोएट रिलेटेड टू दिस जर्नी ऑन द रोड. डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइड करना है. टोटल आपको A to H ऑप्शंस दिए हैं. A to H, ABCDEFGH. इनमें से आपको डिवाइड करना है 2 भागों में. पहला भाग होगा एज एक्टिविटीज द पोएट विल प्रैक्टिस. मतलब कवि जो है इसमें कौन से एक्टिविटीज करने वाला है, पहला पार्ट होगा. एंड द सेकंड पार्ट इज एक्टिविटीज ही विल नॉट प्रैक्टिस. और दूसरा पार्ट ये है कि इनमें, इन एक्टिविटीज में से कवि कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने वाला है. तो हम इसके 2-3 एग्जांपल देखते हैं और आगे की एक्टिविटी की तरफ जाते हैं. तो पहला जो एक्टिविटी है, वॉकिंग अलोंग द रोड थ्रू ही डज नॉट नो वेयर इट रीचेस. तो यह एक्टिविटी पहले पार्ट में आएगी. एक्टिविटीज द पोएट विल प्रैक्टिस. मैं फिर से पढ़ता हूं. वॉकिंग अलोंग द रोड दो ही डज नॉट नो वेयर इट रीचेस. ये एक्टिविटी आएगी. एक्टिविटीज द पोएट विल प्रैक्टिस. सेकेंड ऑप्शन, सॉरी, complaining about the discomforts during the journey. Complaining about the discomforts during the journey, ये ऑप्शन आएगा सेकंड पार्ट में. एक्टिविटीज ही विल नॉट प्रैक्टिस. थर्ड ऑप्शन, पोस्टपोनिंग द जर्नी. पोस्टपोनिंग द जर्नी, ये भी ऑप्शन आएगा सेकंड पार्ट में. एक्टिविटीज ही विल नॉट प्रैक्टिस. फोर्थ ऑप्शन, प्रेइंग फॉर गुड फॉर्चून. प्रेइंग फॉर गुड फॉर्चून, ये भी ऑप्शन आएगा सेकंड पार्ट में. एक्टिविटीज ही विल नॉट प्रैक्टिस.
नेक्स्ट ऑप्शन, कैरिंग द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गुड पीपल, कैरिंग द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गुड पीपल, ये ऑप्शन आएगा फर्स्ट पार्ट में, एक्टिविटीज द पोएट विल प्रैक्टिस। तो इस तरह से आपको बाकी के ऑप्शंस पार्ट में डिवाइड करने हैं। आगे की एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट डाउन द ट्रेट्स द पोएट एग्जिबिट थ्रू द फॉलोइंग लाइंस, वन इज डन फॉर यू। एक एग्जांपल आपको करके दिया है कि उस लाइन में से कौन से एग्जिबिट्स, क्वालिटीज कवि हमें दिखाना चाहता है। तो पहली लाइन ये है, henceforth I ask for no good fortune, I myself am good fortune। तो इस लाइन में से उसका जो क्वालिटी है वो कौन सी दिखती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिया है। और नेक्स्ट एग्जांपल, आगे के जो एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। तो इसमें से कवि का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कौन सी दिखती है, पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, अगर दूसरी क्वालिटीज हम देखने जाएंगे तो उसमें दूसरी क्वालिटीज भी दिखती है, सेल्फ रिलायंट। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट एग्जांपल, I do not want the constellations any nearer, I do not want the constellations any nearer। इसमें क्वालिटी जो है वो दिखती है सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ अश्योरेंस। ओके, तो इस तरह से बाकी की एक्टिविटी आपको करनी है। आगे की जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज आपको करनी है एक लाइन बाय लाइन और एक्टिविटीज बाय एक्टिविटीज। फ्री वर्स की मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह दी गई है, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आगे जो एक्टिविटीज है वो आपको घर पे करनी है। तो यहाँ 2.1 जो हमारी पोएम है, पहली पोएम, उसको हमने कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे 2.2 पोएम, अगली पोएम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन टुडेज लेक्चर। Today we are going to learn second poem of the second unit, Indian weavers। Indian weavers क्या है, वीव आपको पता होगा, वीव मतलब बुनना, ज्याला आपण कपडे विणणे असं म्हणतो मराठीमध्ये। तो वीवर्स जो है वो वीवर्स मतलब कपड़े बुनने वाले, कपड़े सीने वाले। आपको पता है कि टेलर्स हमारे कपड़े सीते हैं या अलग अलग कारखानों में जो कपड़ा बनता है, जो बुना जाता है, वो बुनने वाले एक ही लोग होते हैं, लेकिन वो जो कपड़ा है वो कपड़ा अलग अलग ओकेजन्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो वैसा एक सिंबलाइजेशन लेके पोएटेस सरोजिनी नायडू ने ये पोएम लिखी है, इंडियन वीवर्स। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, पोएट एंड पॉलिटिशियन। मतलब वो पोएट भी रह चुकी है, पॉलिटिशियन भी रह चुकी है और इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल करने वाली एक एक्टिविस्ट भी रह चुकी है। शी वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। हाँ, कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिशों से इंडिया को आजाद कराने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था और इंडिया को फ्रीडम देने के लिए स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, शी बिकेम अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड स्वराज। तो वो फॉलोअर बन चुकी थी महात्मा गांधी जी की। सरोजिनी नायडू इज वाइडली नोन फॉर हर पोएट्री विच इंक्लूडेड बोथ चिल्ड्रंस पोएम्स एज वेल एज थीम्स लाइक पैट्रियोटिज्म, रोमांस, ट्रेजेडी। तो ये जो तीन सब्जेक्ट है, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, रोमांस का तो मतलब आपको पता ही होगा, एंड ट्रेजेडी मतलब दुख, सैडनेस। तो इन तीन सब्जेक्ट पर उनकी कविताएं, सरोजिनी नायडू की कविताएं बहुत बार प्रसिद्ध हो चुकी है, फेमस हो चुकी है। और उसके साथ साथ उनकी चिल्ड्रंस पोएम्स के ऊपर भी जो कविताएं है वो भी प्रसिद्ध हो चुकी है। शी बिगैन राइटिंग एट द एज ऑफ 12। Her mother used to write poetry in Bengali. Her mother was also poet
and she used to write in Bengali language. Okay, her play Maher Munir, written in Persian, impressed the then Nawab of Hyderabad. हाँ, उनका जो उन्होंने एक प्ले लिखा था, एक नाटक लिखा था माहिर मुनीर नाम का, जिस माहिर मुनीर नाम के प्ले ने, ड्रामा ने, उस जमाने के मतलब हैदराबाद के जो नवाब थे बिफोर इंडिपेंडेंस, हैदराबाद के नवाब को इम्प्रेस किया था, इन्फ्लुएंस किया था. इन 1905 her first collection of poems named The Golden There's Hold was published. 1905 में उनका पहला पोएम का कलेक्शन, जो कविताएं सरोजिनी नायडू जी ने लिखी, उनकी कविताओं का पहला कलेक्शन, पहला बुक पब्लिश हो चुका था, जिसका नाम था द गोल्डन देयर्स होल्ड, और वो पब्लिश हुआ था 1905 में, 1905 में. ओके, तो पहले हम कविता का जो समरी है, लेट्स रीड एंड लेट्स लर्न अबाउट द समरी ऑफ द पोएम, कि समरी क्या है, क्या कविता में बताया गया है. ओके, द पोएम इंडियन वीवर्स बाय सरोजिनी नायडू कंसिस्ट 3 स्टांजास. उसमें 3 स्टांजा है. इन दिस शॉर्ट वर्क द 3 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ आर सिंबलाइज्ड थ्रू द वीवर्स क्रिएशंस. वीवर्स जो क्रिएट करते हैं, वीवर्स जो कपड़ा बुनते हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे सुबह का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग का या रात का टाइम है, तो इन अलग अलग टाइम पर वो जो कपड़े बुनते हैं वो अलग अलग टाइम लाइफ के 3 स्टेजेस के साथ कंपेयर किया गया है. कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन उनमें से 3 पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. जैसे हम छोटे होते हैं तो चाइल्डहुड का पड़ाव आता है, बड़े होने के बाद हम यंग होने के बाद यंग एज का पड़ाव आता है, मिडिल एज का पड़ाव आता है, और एंड में हमारा ओल्ड एज का पड़ाव आता है. तो ये 3 जो पड़ाव है, जो स्टेजेस है, जो टाइम है मनुष्य के जीवन की, ये 3 इंपॉर्टेंट टाइम को वीवर्स के कपड़े के बुनने के टाइम के साथ कंपेयर किया गया है. इससे अच्छा वर्ड है सिंबलाइज किया गया है. ओके, इन द मॉर्निंग वीवर्स व्यू ब्राइट ब्लू रोब्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी. अब जैसे मॉर्निंग का एग्जांपल लेते हैं, तो मॉर्निंग के एग्जांपल में दे व्यू ब्राइट ब्लू रोब्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी. ब्लू रोब्स, रोब्स मतलब ड्रेसेस, क्लोथ्स, फैब्रिक. सुबह सुबह जो वीवर्स है, वीवर्स मतलब कौन? द पीपल हु वीव द फैब्रिक, द पीपल हु वीव द क्लोथ, कपड़ा बुनने वाले. ओके, जो है वो सुबह सुबह न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक नया मतलब ब्राइट ब्लू कलर का कपड़ा बुनते हैं या कपड़े बुनते हैं. इन द इवनिंग दे आर क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल पर्पल ग्रीन वेडिंग वेल फॉर अ क्वीन. इवनिंग में क्या करते हैं वो? इवनिंग में एक ब्यूटीफुल कपड़ा बुनते हैं, पर्पल ग्रीन का कपड़ा होता है, और वो किसके लिए होता है? वेडिंग वेल फॉर अ क्वीन, क्वीन के लिए होता है, और वो होता है वेडिंग वेल. वेडिंग वेल मतलब क्या? शादी में जैसे जो दुल्हन होती है, दुल्हन के लिए एक खास कपड़ा बुना जाता है लाल कलर का, उसे शादी का लाल जोड़ा कहते हैं. सो वो जो है वेल. ओके, वेल इज लाइक अ चुनरी, जो चुनरी होती है लाल कलर की. तो ऐसे कलरफुल क्लोथ्स क्वीन के लिए इवनिंग में वीव किए जाते हैं, बुने जाते हैं. मॉर्निंग में न्यूबॉर्न बेबी के लिए, इवनिंग में क्वीन के लिए, और खास करके मैरिज. मतलब इन 2 टाइम से हमें क्या पता चला? पहला टाइम है मॉर्निंग का टाइम. मॉर्निंग का टाइम न्यूबॉर्न बेबी का टाइम. न्यूबॉर्न बेबी का टाइम मतलब होप्स, होप्स का टाइम, आशाएं. सुबह सुबह हमारी आशाएं बहुत सारी होती है. तो ये जो चाइल्डहुड का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम इज इक्वल टू चाइल्डहुड टाइम, और चाइल्डहुड टाइम मीन्स होप्स, अंडरस्टैंडिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चांसेस, एक्सपेक्टेशंस यू कैन से. और दूसरा जो टाइम है इवनिंग का टाइम है. इवनिंग का टाइम मतलब पैशन, वी आर पैशनेट अबाउट दैट. तो हमारा पैशन होता है यंग एज का टाइम. और उसके बाद कवि आगे कहती है कि ड्यूरिंग द चिल ऑफ मूनलाइट नाइट दे आर मेकिंग द श्राउड फॉर अ डेड मैन. मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, अब टाइम आता है रात का. ड्यूरिंग द चिल ऑफ द मूनलाइट नाइट, चिल मूनलाइट, कोल्ड मूनलाइट,
वीवर्स आर वीविंग मेकिंग द श्राउड फॉर डेड मैन। श्राउड, श्राउड क्या होता है? कफन। जो सफेद कपड़ा आता है वो कफन के लिए यूज किया जाता है। मतलब रात का टाइम है, ओल्ड एज का टाइम इज इक्वल टू ओल्ड एज, डेड मैन। तो ऐसे टाइम को सिंबलाइज किया गया है। द टाइम ऑफ द डे सिंबलाइजेस द स्टेजेस ऑफ लाइफ। कौन से स्टेजेस? चाइल्डहुड पहला पड़ाव, प्राइम ऑफ लाइफ मतलब मिडिल एज या यंग एज दूसरा पड़ाव, एंड द ओल्ड एज तीसरा पड़ाव, अंतिम पड़ाव, जीवन का अंतिम क्षण। ओल्ड एज जो होता है वो ओल्ड एज, ये जो टाइम है ये मनुष्य के टाइम का अंतिम, मनुष्य के जीवन का अंतिम टाइम है। ओके, सो नाइट इज इक्वल टू ओल्ड एज, इवनिंग इज इक्वल टू यंग एज और मिडिल एज, प्राइम टाइम ऑफ लाइफ, एंड मॉर्निंग इज इक्वल टू चाइल्डहुड। The weavers create the garments needed for each stage at the corresponding part of the day. मतलब जो वीवर्स है, वीवर्स देखो जैसे वीवर्स सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह के वीवर्स अलग है, शाम के वीवर्स अलग है, रात के वीवर्स अलग है। वीवर्स सेम है, वो सेम कपड़ा बुनते हैं, लेकिन कपड़ा अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्पस के लिए, ओकेजन के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे हमारा जो टाइम होता है, जैसे चाइल्डहुड हो या यंग एज हो या ओल्ड एज हो, उसमें हम अलग अलग प्रकार का बिहेवियर करते हैं। उन स्टेजेस में हमारा पर्पस, हमारा बिहेवियर अलग अलग तरह का होता है। इन द रोमांटिक एट द डॉन फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, इन द रोमांटिक इवनिंग फॉर द ब्राइड, एंड इन द चिल डार्क नाइट फॉर द डेड। The colors also tell the story of the three stages of man lives. ये मैन मनुष्य के जीवन के 3 स्टेज है। ओके, नेक्स्ट, weavers weaving at the break of day. Why do you weave a garment so gay? कविता में बताया गया है कि गारमेंट so gay। पोएम एक्सट्रैक्ट पेज नंबर 100, आपका ध्यान है ना? We are on page number 100. We are on page number 100. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? G-A-Y, gay means colorful, garment means fabric. यहाँ कवयित्री जो है, हमारी पोएटेस जो है, वो वीवर्स से पूछती है कि why do you weave such a colorful garment in the morning? और उसका आंसर भी वही देती है कि blue as the wing of halcyon wild. Blue as the wing of halcyon wild. हेल्सियन मतलब जैसे किंगफिशर बर्ड होता है कलरफुल, उसकी तरह, उसकी पंखों की तरह कलरफुल जो कपड़े हैं वो तुम क्यों तैयार करते हो? द पोएटेस आस्क्ड टू द वीवर्स, और पोएटेस उसका मतलब वीवर्स उसका आंसर देते हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? अगेन वो क्वेश्चन करती है वीवर से कि ये जो ब्राइट गारमेंट है एट द टाइम ऑफ इवनिंग, फॉल ऑफ नाइट, फॉल ऑफ नाइट मींस एट द टाइम ऑफ इवनिंग। सो एट द टाइम ऑफ इवनिंग तुम ये जो ब्राइट गारमेंट है, ये ब्राइट गारमेंट क्यों बनाते हो, क्यों बुनते हो? द पोएटेस आस्क्ड टू द वीवर्स। और ये कपड़े कैसे हैं? लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। ये जो कपड़े हैं ये पीकॉक के मतलब पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन कलर के हैं। तो ये कलरफुल कपड़े तुम क्यों वीव करते हो? तो उसका आंसर वीवर्स देते हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन। हम ये कपड़े मैरिज वेल्स के लिए तैयार करते हैं। और थर्ड एंड लास्ट आंसर, वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? वीवर्स तुम इस मूनलाइट चिल में, सोलोमन एटमॉस्फेयर है, सोलोमन मतलब वेरी क्वाइट एटमॉस्फेयर में, अति मतलब बहुत ही शांत वातावरण में तुम ये जो रात के समय में कपड़े बुनते हो, ये किसके लिए बुनते हो? व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। और ये कपड़े कैसे है? व्हाइट एज अ फेदर, फेदर की तरह व्हाइट, क्लाउड की तरह व्हाइट। तो ये किसके लिए है? तो उसका आंसर वीवर्स देते हैं, वी वीव और डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम ये कपड़े डेड मैन के फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल क्या है? जिसे हम अंतिम संस्कार बोलते हैं, मनुष्य के मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको कफन
पहनाया जाता है, तो उस कफन के लिए हम ये कपड़ा बुनते हैं। तो ये लास्ट जो स्टांजा है, श्राउड, श्राउड मतलब कफन। ओके, श्राउड का मीनिंग क्या है? अ क्लोथ इन विच अ डेड मैन पर्सन इज रैप्ड। डेड पर्सन इज रैप्ड, जिसको डेड पर्सन को जिस कपड़े में उसको रैप किया जाता है, दैट इज कफन, मतलब श्राउड। एंड सोलोमन मीन्स सीरियस, ओके, एंड प्लम्स मीन्स सॉफ्ट फीदर्स। सो लास्ट स्टांजा symbolizes the last stage of man, old stage of man। old stage के बाद मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। तो वैसे जैसे रात के बाद दिन खत्म हो जाता है, तो इसे यहाँ सिंबलाइज किया गया है। ओके, तो इंडियन वीवर्स, ये जो पोएम है बहुत ही छोटी सी पोएम है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो कीप इन माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, रीड द पोएम अगेन एंड अगेन एट होम। ओके, आपके पास अगर कुछ नोट्स है तो वो नोट्स आप शॉप में से परचेस करो, नोट्स बुक्स आ गई है। सो पेज नंबर 100 पे हमारी जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। पेज नंबर 101 पे कुछ एक्टिविटीज है, उनको हम सॉल्व करते हैं थोड़ी थोड़ी और आगे जाते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? A1, पेज नंबर 101, एक्टिविटी A1, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग वोकेशंस। वोकेशन मींस वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को आपको डिक्शनरी यूज कर सकते हो या गूगल सर्च कर सकते हो, उनका मीनिंग आपको जाके ढूंढना है। जैसे कि पहला है वीविंग। वीविंग मतलब क्या? बुनना। जैसे हैंडलूम हो गया, टेलरिंग हो गया, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स हो गए, दैट इज वीविंग। दूसरा वर्ड क्या है? टेलरिंग। टेलरिंग से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? जैसे टेलर होता है, मशीन होती है, मशीन को अलग अलग कलरफुल जो कपड़े हैं वो वीव करता है। ओके, देन थ्रेड होता है, नीडल होती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको रिलेटेड वर्ड्स को और उसके मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है। यू कैन गूगल वेरी वेल एंड दीज आर वेरी सिंपल। आगे जाते हैं एक्टिविटी A2। A2 में टेबल दिया है, वो टेबल आप इजीली कर सकते हो घर में। जैसे अर्ली मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, कोल्ड इन द नाइट। अर्ली मॉर्निंग का मीनिंग हो गया ब्रेक ऑफ द डे। लेट इन द इवनिंग का मीनिंग हो गया यंग एज और इवनिंग टाइम। फॉल ऑफ द नाइट आप लिख सकते हो, जैसे पोएम में वर्ड आया है फॉल ऑफ द नाइट मीन्स लेट इन द इवनिंग। एंड कोल्ड नाइट, कोल्ड नाइट का जो वर्ड है वो पोएम में कौन सा दिया है? कोल्ड नाइट इज सोलोमन एंड स्टिल। और परफेक्ट वर्ड है द मून लाइट चिल। सो कोल्ड नाइट का वर्ड है द मून लाइट चिल्स। और अलग उन टाइम में वीवर्स जो है वो कौन से टाइप के कपड़े बुनते हैं वो आपको आगे लिखना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है अर्ली मॉर्निंग, ब्रेक ऑफ द डे, कौन से टाइप के कपड़े? वीवर्स वीव रोब्स फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड। उसके आगे इवनिंग में और नाइट में आपको लिखना है। इस तरह से बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आगे जाते हैं आगे की एक्टिविटी तरफ। एक्टिविटी नंबर 4, कंप्लीट द वीवर्स व्यू इन द चिल मूनलाइट। तो चिल मूनलाइट में कौन सा कपड़ा बुनते हैं? कपड़ा कौन सा बुनते हैं? अ क्लोथ विच इज एज व्हाइट एज अ क्लाउड। मूनलाइट में कौन सा कपड़ा है? व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ विच इज वेरी व्हाइट एज अ क्लाउड। तो ऐसे आपको आगे लिखना है अलग अलग प्रकार के कपड़े। ओके, देन एक्टिविटीज कुछ खास नहीं है, जैसे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 पे आपको एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि न्यू का ओल्ड हो गया, ब्राइट का डल हो गया, डेड का अलाइव। सिंपल एक्टिविटी है। ओके, एक्टिविटी 4 में क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच की लाइन आपको लिखनी है। जैसे कि पहले फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली। अब सिमिली की लाइन कौन सी है? सिमिली की लाइन है थर्ड। कविता में देखो पेज नंबर 100 पे थर्ड लाइन कौन सी है? ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। दिस इज द लाइन ऑफ सिमिली, क्योंकि उसमें एज आया है। ओके, और लाइन कौन सी है? लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 कौन से? 3, 4, 5, 6, 7। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। ये लाइन है सिमिली की लाइन। आगे देखते हैं इमेजरी। जैसे इमेजरी क्या होता है? आपकी आंखों के सामने एक इमेज खड़ी हो जाती है लाइन को पढ़ के। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो इमेजरी है? ओके, इमेजिन करके आप लिख सकते हो या आपके सामने इमेज तैयार हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन क्या है? वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे मतलब मॉर्निंग। मॉर्निंग आपके सामने इमेज तैयार हो गई।
फोर्थ लाइन भी हो गई जैसे वी व्यू द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब क्या, अभी अभी जिसने जन्म लिया है वो बच्चा, आपके सामने वो इमेज खड़ी हो गई। तो ऐसे इमेजरी की लाइन आपको लिखनी है। बाकी मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपको 10th 11th में हो चुके हैं उसके लाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम भी आपको लिखना है। विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स यू कैन राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। सो इस तरह से हमारी जो 2.2 ये जो पोएम है इंडियन व्यूवर्स, ये इंडियन व्यूवर्स को हमने यहाँ कंप्लीट किया है विद द एक्टिविटीज आर वेरी सिंपल एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।